When I was in my fourth year, when I started my fourth year, they hired me as a quant developer. आपने देखा कि कोड लिख रहे हैं और पैसा बन रहा है. I would code out their ideas for them. I would backtest it. I would write the execution part of it for them. And obviously, when you code out these ideas, right, and you are seeing those numbers yourself, कि भाई ऐसे बस code करके ये profit बन रहा है. So for someone in college, how can they do it and what knowledge is required? See, being a trader and being a developer is very different aspect of it. So essentially, you have to understand the fundamentals of the stock market from there. Once you understand those theories, coding it out is not a difficult task. I mean, it's just a bunch of if-else statements and for loops. That's it. You mentioned कि you are not yourself a trader. So does that not hinder you when you write the algorithms? वेलकम बैक. आज का जो पॉडकास्ट है ना काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल एक्साइटिंग है बिकॉज आज बात तो मैं एक कोडर से ही कर रहा हूँ बट वो कोडिंग से पैसा एक नॉर्मल तरीके से नहीं कमाते. ना तो उनके पास कोई जॉब है, ना उन्होंने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया, कोई रिमोट जॉब ली, ना कोई कोर्स बेचा. व्हाट ही डज इज ही राइट्स एल्गोरिदम्स फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग. नाउ दिस टॉपिक वाज वेरी न्यू टू मी एज वेल. तो बिना टाइम वेस्ट करे पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं. बट जस्ट वन मोर थिंग, I am on a mission to hit 100k subscribers on this channel in the next 6 months. And for that, I need your help. If you've ever enjoyed any one of my videos, learned something from them, please hit that subscribe button. It helps me massively. Awesome. I am Sanskar and you're watching The Sanskar Show. So to set some context, you are from IIT. Yeah. And you did a 5 years program. Correct. In the 4th year, you tried your hands with trading, quant research, development. मुझे नहीं पता क्या है. You will tell me about it. Okay. And then you launched your own startup in the same field. Yeah. So in today's video, we'll talk about your journey from college to trading and then to building your startup. Sounds good? Yeah. Wonderful. So first of all, can you tell the audience ki how did you get your interest in trading, being a college student? Yeah, just one thing to clarify. So I mean, I enjoy trading and I mean the aspects of trading. But what I enjoy more is the technical aspect of it, and not just the trading. So I'm not a trader myself. Okay. I'm a developer. I enjoy building the infrastructure and the technical aspect of it. That's what interests me, and that's my kick essentially. And even to the field of trading, I mean, I got introduced to the field of trading through this technical aspect itself. So when I was in my fourth year, when I started my fourth year, I had ended my internship with Adobe. I was doing industry research in field of computer vision, and then I thought I would try something else in a different field. Right. And I got introduced to a quant research firm in Gurgaon itself. And they hired me as a quant developer. So what they would have me do is code out their strategies. They would come up with ideas. They were traders, but they didn't know any technical aspects of it. So I would code out their ideas for them. I would backtest it. I would write the execution part of it for them. And that's how I got introduced to the field of trading. And obviously, when you code out these ideas, right, and you are seeing those numbers yourself, कि भाई ऐसे बस code करके ये profit बन रहा है, या ये code करके इतनी मार पड़ रही है. So I mean, yeah, those are little things that got me interested. कि yeah, this is something I think I can do. I mean, I'm not going to be a trader. I mean, I never tried it, to be honest. But I was always interested in the technology. So yeah, I thought I would give it a try. And yeah, so I did that part-time for the entire 4th year. And that's how I got introduced to my co-founder, Raghav also. And we worked, so I was an intern with him. We worked for 3-4 months together on a project. And towards the end of my 4th year, and towards the onset of 5th year, we came up with this idea that, okay, let's try something up in the retail space because it's very interesting. And something really interesting is going on over there. You mentioned कि you are not yourself a trader. So does that not hinder you when you write the algorithms? See, being a trader and being a developer is very different aspect of it. So I mean, you just have to understand the nuances कि भाई trader सोच क्या रहा है और trader को चाहिए क्या. But उसको मतलब basically जो उसकी technical aspect है या जो
मतलब उसको ट्रांसलेट करना है कोड में, दैट्स वेरी डिफरेंट. यू जस्ट हैव टू गेट इनसाइट्स ऑफ व्हाट ही इज थिंकिंग एंड इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स भाई. उसको करना क्या है, उसको बस बाई करना है एक पॉइंट पे सेल करना है, मतलब एक एंट्री लेनी है एक एग्जिट लेनी है, बस इतना उसका काम है. वो एंट्री और एग्जिट की कंडीशंस बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है. बट या ऑल्सो वन मोर थिंग कि जितने प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज होती हैं भाई उनकी एंट्री और एग्जिट बड़ी सिंपल होती है. वो जो कॉम्प्लेक्स में घुसता है वो पैसे नहीं कमा पाता. सिंपल क्या होती है मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई उन्होंने 10 डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स लगा दिए एंट्री के लिए, और मतलब 10 डिफरेंट कंडीशंस लगा दिए एग्जिट के लिए. तो मतलब या इन माय एक्सपीरियंस कितने 3 साल हो गए मेरे को करते हुए. इन माय एक्सपीरियंस जो इतनी कॉम्प्लेक्स में घुसता है ना वो मतलब उसी में घुसता रहता है, उसी को ऑप्टिमाइज करता रहता है. और वो चीज़ें इतनी प्रॉफिटेबल नहीं निकल जाती. कुछ काम कर जाती हैं ऑब्वियसली, हर जगह आउटलायर्स होते हैं, बट जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं. बिहाइंड द सीन्स आपने एक लाइन बोली थी कि जब आप वहाँ पे गए रिसर्च करने, इंटर्नशिप करने, तो आपने देखा कि कोड लिख रहे हैं और पैसा बन रहा है. तो कैन यू ब्रेक डाउन दैट लाइन फॉर द ऑडियंस जो कि अभी कोड लिखना सीख रही है, कॉलेज में है? आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू ब्रेक दैट डाउन, बट हाँ मतलब जैसे मैंने कहा ना कि कोड लिखने में बस ये है कि भाई एक एंट्री की क्राइटेरिया एक एग्जिट की क्राइटेरिया. सो यू आर बाइंग एट वन पॉइंट, यू आर सेलिंग एट वन पॉइंट. द होल आइडिया इज कि बाय लो सेल हाई. तो मतलब इफ यू आर बाइंग वेरी लो एंड यू आर सेलिंग वेरी हाई, इट्स मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, राइट? सो वो तुम्हें दिख जाता है कोड में कि हाँ मतलब 100 रुपये पे खरीदा 200 रुपये पे बेच रहा है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं. तो हाँ मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कोड लिखने का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वही होना चाहिए. मतलब या इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग टू कोड आउट, बट या आई मीन essentially I don't know how to describe that feeling. तो essentially what do you do, मतलब आप कोड लिख रहे हो तो आप क्या कोड लिखते हो? So yeah, see, I will describe by what we are trying to do, right? So we are trying to build an options trading ecosystem. So what that means is कि अब इंडिया में जितने ऑप्शंस ट्रेडर हैं, इन जनरल जितने ऑप्शंस ट्रेडर, व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर पीपल हु डोंट नो? या सो ऑप्शंस इज डेरिवेटिव्स. सो देयर आर 2 kind of options, call options and put options. So it's essentially a bet against where it's a contract. So how the contract is structured is there's an expiry for the contract कि भाई इस दिन ये contract expire होगा. तो अब contract में 2 साइड होते हैं, एक जो बाई कर रहा है एक जो सेल कर रहा है, ठीक है? और 2 टाइप के contracts होते हैं, एक कॉल होता है एक पुट होता है, राइट? तो contract में एक प्राइस डिसाइड होता है कि लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 100, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं उसको. तो उसकी स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपये. तो कॉल ऑप्शन ये कहता है कि अगर एक्सपायरी के दिन जो मेरा स्टॉक है या जो मेरा जिसके ऊपर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कर रखा है, अगर वो 100 रुपये से ऊपर एंड करेगा तो जो बायर है उसको प्रॉफिट होगा. तो लेट्स से मैंने 100 की स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो कॉल ऑप्शन ये कहता है कि एट द एंड ऑफ एक्सपायरी द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट has the option to exercise the contract. And what exercising the contract means is that he can buy that stock at a value of 100 rupees itself. भले ही वो मार्केट में उसका प्राइस 120 चल रहा है, 150 चल रहा है, it doesn't matter. The seller of the contract has to sell him that particular stock at 100 rupees. तो इसमें क्या होगा कि अगर अभी करंट प्राइस 150 रुपये चल रही है, तो बायर तो 100 में खरीदेगा, बट मार्केट प्राइस 150 रुपये, तो उसका 50 रुपीज़ का फ़ायदा है, राइट? और सेलर का 50 रुपीज़ का नुकसान है. और पुट में जस्ट ऑपोजिट होता है कि द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेज that I will sell you this option at 100 rupees, doesn't matter what the market price is. So अब अगर मार्केट प्राइस 50 रुपये चल रहा है तो मैं सामने वाले को 100 रुपये में बेचूंगा. वो अगर अभी मार्केट में जाके उसको लिक्विडेट करना चाहेगा तो उसको 50 में उसको वो लिक्विडेट करना पड़ेगा. तो उसका 50 का नुकसान है, मेरा 50 का फ़ायदा है, राइट? तो अब इसमें क्या होता है कि अब अगर लेट्स से कॉल ऑप्शन की बात करते हैं, पुट में जस्ट वाइस वर्सा होगा. तो कॉल ऑप्शन में है कि 100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस है, राइट? अब अगर स्टॉक की प्राइस 90 रुपये में चल रही है तो बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल नेवर एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, क्योंकि उसका तो नुकसान है ना. और अगर 100 रुपये से ज़्यादा चल रही है तो 100 रुपये से ज़्यादा चल रही है तो ही विल एक्सरसाइज दैट ऑप्शन. तो अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हम खरीदते हैं तो देयर इज अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग बिटवीन द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस ट्रांजैक्शन द बायर हैज़ टू पे अ प्रीमियम
बिकॉज द सेलर इज टेकिंग अ रिस्क, राइट. सेलर का रिस्क इन्फिनिट है, क्योंकि अभी बायर का तो ये है कि अगर 100 से नीचे होगा तो वो नहीं खरीदेगा, ठीक है. अगर 100 से कितना भी ऊपर होगा, मान लो 100 से 1000 रुपये पहुंच गया, तो सेलर का तो 900 रुपये का नुकसान हो गया. तो हिज रिस्क इज अनलिमिटेड. So and the buyer's risk is limited. So buyer's risk is limited in the sense that he pays a premium. It's just like insurance, right? तो इंश्योरेंस में ये होता है ना कि हमने किसी चीज़ का इंश्योरेंस लिया और अगर मैं इंश्योरेंस एक्सरसाइज करने जाऊंगा तो जो इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस खरीदने के लिए मेरे को प्रीमियम पे करना पड़ता है. तो बस इट्स जस्ट एन ऑप्शंस की मेरे को एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा. वो मतलब बेसिकली टू हैव दैट राइट टू एक्सरसाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट, राइट. तो sorry, we deflected from the conversation about the options trading, right? So we are trying to build an options trading ecosystem. So this is called derivatives trading. It's not simple stocks, right? Stocks तो एकदम linear model होता है कि आज 100 रुपए में खरीदा, कल 150 होगा तो 150 में बेच दूंगा, तो linear हो गया ना, buy sell. अब contract में क्या है कि this is a non-linear trading. तो मतलब बिल्कुल linear space में काम नहीं करता. वो प्रीमियम कैसे डिसाइड होगा, वो मार्केट डिसाइड करती है कि 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस है, उसका प्रीमियम 4 रुपए भी हो सकता है, उसका प्रीमियम 150 रुपए भी हो सकता है. और 150 रुपए नहीं होगा वैसे, 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, वरना उसका प्रीमियम कुछ भी हो सकता है, वो मार्केट डिसाइड करती है. तो इसमें बहुत सारे इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं. एक तो ये होता है कि मतलब अभी करंट प्राइस क्या चल रही है. अगर करंट प्राइस 120 रुपये चल रही है और 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी एट प्रेजेंट उस कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपीज़ है, तो वो प्रीमियम में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी. प्लस उसके टॉप पे सेलर और रिस्क ले रहा है, क्योंकि 120 से ऊपर बहुत भी जा सकती है. तो प्रीमियम मार्केट डिसाइड करती है. एंड it's essentially a non-linear model. There are multiple models to essentially price an option. And सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो ब्लैक शोल्स मॉडल होता है. सो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शन ट्रेडिंग इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. अगेन कमिंग टू व्हाट वी आर डूइंग. सो option trade, there are categorically two kinds of option trader. One is systematic trader, one is discretionary trader. I'll tell you the distinction between the two. So systematic trader जो होता है, it's also applicable in stocks essentially, but systematic trader जो होता है, he has his own set of rules कि मेरे को इस point पे entry लेनी है, इस point पे exit लेना, इस तरीके से अपनी position बनानी है, इस तरीके से अपनी position liquidate करनी है, ठीक है. It's all on a set of rules, ठीक है, कि जब market में ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी, so I will take this position, जब ऐसे ऐसा होगा I will exit this position. So it's all automated. Essentially he has a set of rules. So now when you have a set of rules, you just don't come up with an idea and you put money into it and you start trading. So what you do is you research that idea, right? So you test out those ideas on historical data. That's called backtesting. So you test out your hypothesis on that historical data. Once you're comfortable with that hypothesis, what you will do is you will validate that hypothesis in the present live market, and that's called forward testing or paper trading. So what you are doing is you are just tracking the current market, you are testing out your hypothesis in current market and not firing actual orders in the market, right? That's called paper trading. Once you are comfortable with both back testing, forward testing, then you execute it in the live market, and all of this is happening automatically. There is no manual intervention essentially, right? So मतलब सब कुछ तुमने basically you have a set of rules, you can code out those set of rules and you can execute it out. तो ये back testing, forward trading, live trading, अब इसमें क्या है कि it requires a lot of technical expertise. एक तो market expertise चाहिए ही, क्योंकि you should know what you are doing, right? And options trading is very risky, very risky. So क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सेलर का रिस्क तो इन्फिनिट ही होता है. तो यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, वो मार्केट एक्सपर्टीज हो गया, बट यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट, वो टेक्निकल एक्सपर्टीज हो गया. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज रिमूव दिस टेक्निकल बैरियर कम्प्लीटली, एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग नो कोड टूल्स वेयर you can just specify your set of rules in sort of a web based form, or with some drop down selections, with just some inputs. You'll define your set of rules with a click of button. You will see the entire historical analysis, historical data पे हम back test करके within seconds we will give you the results कि पिछले market scenarios में how has your strategy, so these set of rules are called strategies, and how has your strategy performed. Again, once you are comfortable with your strategies, right, you will save it, you will execute it on paper trading or forward testing, and with a click of button you can go to forward testing. Once you are comfortable with both back test and forward test, you will
Yeah, with a click of button, just connect your broker and start firing orders in the live market. So I mean, all of this is done in a seamless manner. No technical expertise required, no coding required. That's what we are doing. So that's just one part of it, which is the systematic trading. The second part is the discretionary trading part. So अब discretionary trading में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बस मार्केट को विजुअलाइज कर रहे हैं, उन्होंने कुछ फॉर्मलाइज नहीं कर रखा है कि this is how I will this is how I will take my positions. What they are doing is they are observing the market. They have different views of how they want to observe the market, and so they are looking at option chain कि ऑप्शन चेन देख रहे हैं और मतलब उसी टाइम पे वो डिसाइड कर रहे हैं कि ओके लेट मी टेक दिस बेट कि मैं अपनी पोजीशन ऐसे बनाऊंगा एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन. तो जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट टूल्स जो यूज़ करते हैं, वी आर ऑल्सो बिल्डिंग दैट. I mean, earlier, let's say 3 months before, we were just into the systematic trading part. Now we are also entering into the discretionary trading part. Right. So yeah, we are also launching those products. So essentially what you are doing is, let's say I am a layman and I want to do options trading. So by coming at your platform, I can simply put out some strategies in simple plain English. And yeah, I mean it's not English, it's just with some drop down selections with I mean you don't type out in natural language. You just you have a template. I don't need to code basically. Yeah, you don't need to code. Coding will be done by your backend no code tool. Yeah. एंड वो मेरे को एक सिस्टमैटिक वो क्या कहते हैं एल्गोरिदम बना के दे देगा विच विल ट्रेड ऑन माई बिहाफ. आई मीन इट्स अ डू इट योरसेल्फ प्लेटफॉर्म. सो यू आर डिफाइनिंग योर रूल्स, राइट. हम कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहे. इट्स कम्प्लीटली योर ओन रूल्स. तुमने उस टेम्पलेट में उसको फिट कर दिया अपने रूल को और बस बैक टेस्ट का बटन क्लिक कर दिया. वो पूरी हिस्टोरिकल एनालिसिस दे देगा कि भाई पिछले 7 साल में अगर इस सिस्टम तुमने फॉलो किया होता तो तुमने ये 1000 ट्रेड्स ली होती. आउट ऑफ दीज 1000 ट्रेड्स you would have been profitable 60% of the times, 40% of the times you would have lost. इतना लूज किया होता है, इतना बनाया होता है, and those kind of statistics. Got it. Perfect. तो अभी मुझे ये बताओ रजत कि आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है. So for someone in college, if they also want to get into this thing of writing algorithms for trading, how can they do it and what knowledge is required? Essentially you have to understand the fundamentals of the stock market कि भाई मार्केट काम कैसे करता है. जैसे मैंने इनिशियली एक्सप्लेन किया ना कि कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं. तो थ्योरी समझनी बहुत ज़रूरी है, राइट. कि मतलब मार्केट डायनामिक्स काम कैसे करती है, जो भी तुम इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो वो प्राइस कैसे होता है, उसको ट्रेड कैसे करते हैं. सो जस्ट अंडरस्टैंड द थ्योरी. बहुत सारे मतलब अब तो भाई ट्रेडिंग इस तरीके से फट चुका है मार्केट में कि मतलब देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज टू लर्न आउट फ्रॉम देयर. वंस यू अंडरस्टैंड दोज थ्योरीज, coding it out is not a difficult task. I mean it's just a bunch of if else statements and for loops. That's it. Okay. So I mean any first year programmer knows how to write for loops and if else statements. Correct. So they can do it. You just understand the theory. थोड़ा सा interest होगा so you learn it out. It's not that difficult. There are so many resources. I mean we are also trying to get into the education side of it because अभी तो ये है कि जब हमने शुरू किया था तो because the product is very technical, right? I mean it took a lot of time in building the product and improving the user experience. I mean you are translating coding into a no code tool. So I mean user experience improve करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अभी तक तो हम सिर्फ वही कर रहे थे. Now we are getting into the content and the education side of it. So I mean you can also visit my platform and try to learn from there. But there are also other really good resources out there. Yeah. Also initially तो आपको वो ट्रस्ट भी बनाना पड़ेगा because you are a trading platform. मतलब see you are putting your trust in a system, right? जो तुमने खुद नहीं कोड किया हुआ and you're putting your money into it. So customer trust, customer support is very important. I think that's one place that we are proud of कि मतलब the market is very competitive. I mean we are into SaaS business, right? It's very competitive out there. बहुत हमसे बहुत पहले से entrants बैठे हुए हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं. मतलब our USP is customer support कि भाई बंदे ने मेरे प्लेटफॉर्म से पैसा लगा रखा है, कुछ भी एक चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं या कुछ भी एरर हो जाता है. मतलब टेक है, राइट. 99.99% ऑफ द टाइम सही चलेगा, 0.01% टाइम कहीं भी कुछ भी गलत हो सकता है. सो यू हैव टू बी देयर फॉर द कस्टमर. यू हैव टू रिजॉल्व हिज क्वेरी ऑन द स्पॉट. मतलब उसमें सेकंड्स का भी डिले नहीं कर सकते. तो आपने लगाया है पैसा? या आई मीन मैं डायरेक्टली खुद नहीं ट्रेड करता. तो
राघव का एक पोर्टफोलियो जो कि मैं मैनेज करता हूँ. इट्स हिज मनी बट आई मैनेज इट. बट नाउ आई हैव आल्सो गिवन अप ऑन इट एंड आई गिवन इट टू समवन एल्स, क्योंकि मेरे को जितना सीखना था. सो क्या होता है कि जब प्रोडक्ट मैं बना रहा था तो मुझे खुद भी तो यूज़ करना पड़ेगा यूज़र एक्सपीरियंस सुधारने के लिए. अगर मैं खुद नहीं यूज़ करूँगा, मेरा खुद का ट्रस्ट नहीं होगा मेरे प्रोडक्ट पे, तो मैं लोगों को कैसे बेचूंगा, राइट? तो आई मीन दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड यूजिंग माय ओन प्लेटफॉर्म एंड गेटिंग इनटू ट्रेडिंग. आई सेड आई एम नॉट ट्रेडर बट आई स्टिल ट्रेड इन द सेंस कि मतलब हाँ, आई वाज मैनेजिंग राघव's मनी बट नाउ आई हैव गिवन इट टू समवन एल्स कि भाई तुम भी तो सीखो थोड़ी सी ट्रेडिंग, यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द टीम, राइट? सो अभी तक मुझे क्या समझ में आया है कि टू गेट इनटू दिस एल्गो ट्रेडिंग you need to have knowledge of how basics of trading work. I mean, right? That's a must. That's a must. उसके बाद कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग की नॉलेज इज नॉट एट अ टॉप लेवल. बेसिक्स आने चाहिए आपको, बेसिक फंडामेंटल समझ में आने चाहिए, बेसिक लॉजिक समझ में आना चाहिए. हाँ, मतलब उसमें ये भी होता है कि जब ट्रेड कर रहे हो तुम तो लेटेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साइड ऑफ थिंग्स होगी, बट इफ़ यू वांना इम्प्रूव योर सिस्टम्स, इफ़ यू वांना ऑप्टिमाइज योर सिस्टम, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर, सीपीयूज, ओएस, मेमोरी, इन सब चीज़ों के फंडामेंटल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं. कि मतलब हाँ, अगर बिकॉज पीपल आर एक्टिंग इन द मार्केट सो फास्ट एंड द मार्केट इज मूविंग सो फास्ट, इफ़ योर सिस्टम इज लेटेंसी सेंसिटिव, तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि सब कुछ सीपीयू ही कर रहा है. राइट. अभी ना एक स्टेप पीछे चलते हैं. जब आप कॉलेज में आए थे तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हर स्टूडेंट के पास. एकेडमिक्स में जाना, क्लब्स में जाना, अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च करना, आप ट्रेडिंग में भी गए. तो फॉर समवन लिसनिंग टू अस, व्हाट वुड यू टेल देम कि यार कॉलेज में अगर आप आते हो, फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, तो हाउ कैन दे एक्सप्लोर थिंग्स एंड हाउ कैन दे चूज अ गुड पाथ फॉर देमसेल्व्स? या आई मीन आई वुड जस्ट टेल व्हाट आई डिड. हाँ, मतलब मेरे को नहीं पता कि भाई फुल प्रूफ फॉर्मूला क्या है कि लोगों को यहाँ क्या करना चाहिए. मतलब सबके लिए बहुत अलग अलग चीज़ें काम करती हैं एंड एवरीबडी इज़ ऑन अ पाथ दैट दे हैव ऑप्टिमाइज्ड फॉर देमसेल्व्स, राइट? और सबके लिए मतलब खुद ना खुद हर कोई फिगर आउट कर लेता है. ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को सुन के उसका पाथ फॉलो करोगे तो यू विल आल्सो बी सक्सेसफुल. व्हाट आई डिड वाज आई ट्राइड एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग. तो मतलब बहुत सारे क्लब्स थे. लिटरेरी क्लब था, क्विजिंग क्लब था, अब मेरे को याद भी नहीं भाई क्या क्या चीज़ें मैंने ट्राई की. हिंदी समिति थी, बहुत सारी चीज़ें, सब मैंने ट्राई किया. सब में जाता था, मैं सीखता था, चीज़ें देखता था, हर जगह थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लिया. हॉकी भी खेला मैंने भाई, ज़िंदगी में पहली बार हॉकी स्टिक टच किया था. इट्स अ वेरी टफ स्पोर्ट. तो हॉकी भी खेला, फुटबॉल भी खेला, रनिंग भी जाता था और रनिंग नहीं होती थी मुझसे, इसीलिए हॉकी भी छोड़ना पड़ा. तो सब कुछ किया मैंने, थोड़ा थोड़ा हर जगह हाथ पाँव मारने की कोशिश की. और फर्स्ट ईयर मतलब बेस्ट टाइम होता है ये सारी चीज़ें करने के लिए, बिकॉज सिर्फ फर्स्ट ईयर में टाइम होता है. फर्स्ट ईयर समर्स इज़ दी ओनली टाइम जब तुम्हें लगता है कि हाँ ज़िंदगी में बस फ्री टाइम, उसके बाद कभी फ्री टाइम नहीं होता. तो हर चीज़ में हाथ पाँव मारा मैंने. और मतलब एसेंशली माई थॉट प्रोसेस वॉज कि आई वॉन्ट टू अपस्किल माई सेल्फ, कि मैं जहाँ पे भी हूँ इससे थोड़ा सा इम्प्रूव करना है मेरे को. मतलब इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे. और मतलब जहाँ पे ऐसे हर चीज़ों में हाथ पाँव मार रहा हूँ, कहीं पे भी ऐसे इंटरेस्ट टेक हो जाएगा तो उसमें थोड़ा और टाइम दे दूंगा. जहाँ पे लगा कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, वो छोड़ दूंगा. Okay. So now that you are into building your own trading platform or helping others trade easily, तो आपने कुछ मिस्टेक्स नोटिस करी हैं जो ट्रेडर्स यूजुअली करते हैं, जो पेन पॉइंट्स उनके आपने नोटिस करे हैं जिनको आप सॉल्व करना चाहते हो? यार लोगों को क्या लगता है ना कि मतलब टेक्निकल टूल तो मैंने बना दिया. अब टेक्निकल टूल में तो क्या है कि यू कैन इनपुट योर पैरामीटर्स एंड यू कैन ट्राई टू ऑप्टिमाइज योर स्ट्रैटेजीज. लोग क्या करते हैं ना कि लोग जो मशीन लर्निंग में होंगे उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि डेटा ओवरफिटिंग बहुत आसानी से हो जाता है. कि तुम बस पैरामीटर्स ट्वीक करोगे कि भाई मेरा स्टॉप लॉस 20% नहीं 19% रखता हूँ मैं, तो मैं मतलब वो डेटा से ओवरफिट हो जाएगा. और जब एक बार डेटा में ओवरफिट हो जाता है तो वो चीज़ें प्रेजेंट सिनेरियोज में या लाइव मार्केट में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुमने बिल्कुल हिस्टोरिकल डेटा पे सब कुछ फिट कर रखा है, राइट? तो लोगों को क्या है कि मतलब यू कैन, द टूल इज देयर टू हेल्प यू आउट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ व्हाट यू, मतलब जो तुम्हारा सिस्टम है वो फंडामेंटली काम कैसे करता है, उसका एज क्या है, फंडामेंटल एज क्या है. मतलब सिर्फ इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल पार्ट ऑफ इट. तो मतलब माई एडवाइस वुड बी कि जस्ट डोंट बिलीव ऑन द डेटा, जस्ट डोंट बिलीव ऑन द टूल. फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए तुम्हारी स्ट्रैटेजीज के, एंड ओनली देन यू कैन मेक सम मनी.
जो अपना एक्सपीरियंस ले लिया ट्रेडिंग का अपनी इंटर्नशिप से, तो उसके बाद व्हाट डिड यू थिंक कि यार आप इसमें एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, आपको कुछ गैप्स दिखे? हाँ, सो एसेंशली था क्या कि जब मैं और राघव ऐसे देख रहे थे कि भाई ठीक है हम तो सो राघव जो है वो प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क में था। तो प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क मतलब ये हो गया कि यू ट्रेड ऑन योर ओन, मतलब खुद का सारा पैसा लगा रखा है, यू डोंट, देयर इज नो स्टॉक ब्रोकर एसेंशियली इन्वॉल्व, यू हैव अ सिस्टम इन द एक्सचेंज एंड यू आर ट्रेडिंग डायरेक्टली इन द एक्सचेंज। तो अब जब रिटेल की साइड में हम देख रहे थे कि लोग कर क्या रहे, तो देयर वाज अ ह्यूज इंटरेस्ट इन डेरिवेटिव्स मार्केट। और जो गैप दिखे थे तो देयर वर टू थिंग्स कि एक तो जो प्रेजेंट टेक्निकल टूल्स थे दे वर वे टू ओवर प्राइज्ड। तो क्या है कि लोग ट्रेड तो करते थे बट जो मिडिल मैन थे विच इज़ योर ब्रोकरेज, विच इज़ योर एक्सचेंज, विच इज़ योर टूल दैट यू आर यूजिंग टू ट्रेडिंग, सारा प्रॉफिट ले जाते थे, मतलब हद से ज़्यादा ओवर प्राइस। एंड वी थॉट कि तो सबसे पहले हमने एक टूल देखा बैक टेस्टिंग का, एंड मतलब दैट गाय यूज्ड टू चार्ज लाइक 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ पर बैक टेस्ट। तो हमने कहा कि भाई मतलब ये क्या कर रहा है ऐसे बैक टेस्टर, तो हमने पिछले 3 महीने में कम से कम 10 बना रखे हैं। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ यू नो टेकिंग दोज एलिमेंट्स ऑफ द कोड, राइटिंग इट इन अ स्केलेबल मैनर, जस्ट लॉन्चिंग इट फॉर द पब्लिक, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। वी वर्कड ऑन इट फॉर 4 months, वी लॉन्च्ड आवर MVP, एंड मतलब वो बंदा 30-40 रुपये पर बैक टेस्ट चार्ज करता था। हमने लॉन्च किया और हमने कहा लो भाई 2000 बैक टेस्ट पर वीक फ्री फॉर एवरी यूजर। तो मतलब एक तो मार्केट में हद से ज़्यादा चीज़ें ओवर प्राइस थी, जिसकी वजह से मतलब इवन दोस प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वर नॉट प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज द मिडल मैन यूज्ड टू टेक एवरीथिंग, राइट? दैट वाज द फर्स्ट गैप। द सेकंड गैप वाज कि सो एज आई सेड, राइट, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एन इकोसिस्टम, सो पीपल ट्रेड using different ideas, using different kind of tools, using different kind of views, and there was no one single place where they would get everything. So let's say you are trading with idea A, you will use platform A, you're trading with idea B, you will use platform B, and you're paying everybody, right? So the second gap that we observed was कि there is no just one single platform for doing all of this. मतलब मेरे को हर जगह switch करना पड़ता है। You would have seen stock traders or market traders, you know, have those 50 different screens in front of them. There's a reason for that, क्योंकि मतलब एक जगह सारी चीज़ें नहीं मिलती। सो या आई मीन दैट वाज वन गैप दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिज कि भाई सब चीज़ें एक जगह लेके आओ ना, मतलब व्हाई कांट यू बिल्ड दोस टूल्स। तो क्या था कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने कुछ बना दिया, अच्छे से काम कर रहे थे, पीपल यूजिंग इट, फिर वो रेंट कलेक्शन के बिजनेस में आ गए। मतलब दे आर नॉट इनोवेटिंग, दे आर नॉट इम्प्रूविंग देयर प्लेटफॉर्म। उन्होंने बना दिया और अब वो रेंट कलेक्ट कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का। सो आई डोंट थिंक दैट्स द वे टू डू अ बिजनेस। यू ऑलवेज हैव टू इनोवेट इट। यू सी कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, फेसबुक, दे आर स्टिल इनोवेटिंग, राइट? मतलब उनको ज़रूरत क्या है, राइट, बट दे आर स्टिल डूइंग इट। So were you still in college जब आपने स्टार्ट किया बिल्ड करना? Yeah, I mean we started in August 2021 and that was my start of 5th year. तो 5th year में ज़्यादा कुछ होता नहीं है मतलब फाइनल ईयर होता है। तो मेरा डुअल डिग्री था एंड सो उसमें क्या होता है कि 5th year में you have to just work on your thesis. जो 5th year M.Tech dedicated होता है, you just have to work on your thesis and do the research, write the thesis. तो मैंने अपना काम ऐसे सितंबर अक्टूबर तक निपटा लिया था। प्रोफेसर को नहीं बताया था कि भाई सब कुछ हो गया, एंड आई यूज्ड टू डिलीवर दोज रिजल्ट्स इन पार्ट बाय पार्ट, और हाँ बाकी पूरे साल ये काम कर रहा था। नाइस। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कॉलेज में स्टार्ट कर दिया अपना स्टार्टअप, तो अभी स्टूडेंट्स को क्या होता है कि यार प्लेसमेंट लें, स्टार्टअप में जाए, बिकॉज रिस्की बात है, नॉट प्रूवन है, देयर आर डाउट्स, देयर आर नॉट श्योर, राइट? तो हाउ डिड यू कन्विंस योर सेल्फ कि इसमें आप एक ट्राई मार सकते हो, या फिर आपने प्लेसमेंट के बारे में सोचा था? हाँ, तो जैसे मैंने कहा ना कि 5th year की स्टार्टिंग में शुरू किया था, तो यूजुअली प्लेसमेंट दिसंबर में होते हैं, मैंने अगस्त में शुरू किया था। तो लोग वही करते हैं जुलाई से लेकर नवंबर तक के टाइम में, मतलब हर कोई गीक्स फॉर गीक्स पे लगा हुआ है, कोड फोर्सेस पे लगा हुआ है, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं। तो मैं भी वही कर रहा था जुलाई में, व्हेन राघव सेड कि भाई इस चीज़ में ट्राई करना, सो मैं भी वही कर रहा था। तो एसेंशियली द डिसीजन वाज कि भाई ये 4 महीने मैं या तो इसमें दे दूँ, मतलब मेरे पास 1 साल है कॉलेज का, इसके बाद पता नहीं कब मौका मिले, इतना फ्री टाइम कब मिले, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया था कि मेरे पास सबसे ज़्यादा टाइम फ्री टाइम फर्स्ट ईयर में था, और ओवर द टाइम जो है वो मेरा मतलब फ्री टाइम डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो मतलब दिमाग में ये था कि भाई कॉलेज से निकलूंगा फिर पता नहीं कब फ्री टाइम मिलेगा। तो मतलब हाँ, मेरे लिए डिसीजन यही था कि ये 4 महीने प्लेसमेंट की तैयारी करूँ, कोई जॉब को ऑफर ले लूँ, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर ट्राई करूँ, या फिर मतलब
फक द प्लेसमेंट्स राइट. मतलब नौकरी क्या है कि लेट्स से कॉलेज से 30 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी, ऑफ कैंपस कहीं 15 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी. सो हाँ मतलब ठीक है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है ऑफ कैंपस लगाने में, बट दैट वाज अ बेट आई वाज विलिंग टू टेक बिकॉज the upside was huge. Correct. And the downside was not that bad कि मतलब ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं मिलेगी. मतलब कुछ ना कुछ तो कर रखा है, इंटर्नशिप्स भी कर रखी हैं, एक्सपीरियंस भी है, थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, तो मतलब थोड़ी सी मेहनत करके ऑफ कैंपस लगा लूँगा. सो यार मतलब छोड़ो प्लेसमेंट्स, क्या करेंगे. सो फॉर बिल्डिंग अ स्टार्टअप रजत भाई, आपने क्या नोटिस किया है कि जब आप स्टार्ट करा था आपने आइडिया पे वर्क करना, तो व्हाट वर द थिंग्स व्हिच हेल्प्ड यू स्ट्रीमलाइन योर प्रोसेस. मतलब अगर आपको गाइड करना हो किसी यंगस्टर को कि स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, तो वो क्या होंगी. मतलब हाँ बहुत सारी गलतियाँ करके सीखी हैं. बट आज भी गलतियाँ करते हैं, फिर ही सीखता है. सो एक जो इंसाइट्स डिराइव की है मैंने किसी, इफ़ यू हैव टू बिल्ड एनी बिजनेस राइट, there are and especially I will talk from a technical product or a product based business. Correct. Like I am in, there are two things you require to make a successful business. I mean, I'm not saying I'm still successful but I mean जो insight अभी तक derive किया वो मैं बात करूँ. दो चीज़ें मैं बाकी कंपनियों में भी देखी हैं. वन इज़ डोमेन एक्सपर्टीज एंड वन इज़ प्रोडक्ट बिल्डिंग एक्सपीरियंस. तो I don't know how easy it is to be a solo founder, but to have a founding team, what you need to see कि तुम्हारे founding team में ये दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. There should be someone who knows the domain really well, because that is the one guy who will talk to the customers, who will understand the pain point of the customers. Because मतलब YC की भी यही advice होती है कि भाई just listen to your customers, don't do anything else, just listen to your customers, right? तो वो domain expertise बहुत ज़रूरी होती है. मतलब business grow करना है तो domain की knowledge होनी चाहिए कि भाई आज मैं ये कर रहा हूँ, कल को अगर मेरे को कुछ और करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई डोमेन में और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं. तो डोमेन एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. एंड सेकंड, प्रोडक्ट बिल्डिंग एक्सपीरियंस. तो मतलब आई स्टार्टेड आउट इन कॉलेज राइट. मतलब कोई एक्सपीरियंस ऐसा था नहीं प्रोडक्ट बिल्ड करने का, चीज़ें होस्ट करने का, कुछ भी नहीं था. सब ऑन द जॉब सीखा. दो इंटर्नशिप कर रखी थी उसके पहले, एक अडोबी में, एक हॉटस्टार में. तो हॉटस्टार में थोड़ा बहुत पता चल गया था कि हाँ भाई टेक्निकल प्रोडक्ट मतलब बेसिकली बिल्ड कैसे करते हैं, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होती है. या हॉटस्टार एक्सपीरियंस वॉज प्रीटी गुड इन दैट एस्पेक्ट, बट एवरीथिंग आई लर्नड ऑन द जॉब. तो हाँ प्रोडक्ट बिल्डिंग का एक्सपीरियंस वहाँ से आ गया. बट या दीज आर द टू थिंग्स दैट आर मस्ट for trying to build a startup. So for domain expertise, is it important कि आप खुद भी उस चीज़ में सीखो या फिर you can get a co-founder जो कि उसमें expert है? अकेला it's building a startup is always team versus team. मतलब you are not doing anything on your own. मतलब you are doing a lot of things on your own, but it's always the team who is doing all those efforts collectively. So even if you don't have the domain expertise, you need to have your trust on your co-founder or on the founding team ki yeah they will bring that domain inside for you. And for product experience, क्या आपको ज़रूरी है कि आपने पहले कहीं इंटर्नशिप करी हो, किसी प्रोडक्ट पे काम किया हो, प्रोजेक्ट्स बनाए हो स्केलेबल? यार आई वुड से कि एक बार इंटर्नशिप वगैरह करके ना तुम्हें दिख जाता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं. मतलब बाकी लोगों के लिए चीज़ें क्या काम कर रही. सी यू कैन डू अ लॉट ऑफ कोर्सेज, यू कैन रीड अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स इन थ्योरी, बट एक बार सामने देखोगे, मतलब ज़्यादा नहीं, बस 2 महीने की इंटर्नशिप करके सामने देख लोगे ना कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, कि हाँ भाई जो मैंने थ्योरी में पढ़ा वो एक्चुअली में एप्लीकेबल है कि नहीं. अगर लोग वही चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर दैट्स मोर देन इनफ. एंड यू मेंशन्ड कि हॉटस्टार का एक्सपीरियंस वाज क्वाइट good for you, learning experience was good for you, so can you share that, क्या हुआ था? Yeah, so I was in the data engineering team which was even the back end of back end. मतलब वो सारा data collect करते थे, and they used to provide that, I mean they used to make sure that the data is readily available for their analysts or their ML team to utilize it, right? तो मैं हॉटस्टार में मैंने ये देखा कि भाई they really know कि scalable tech कैसे बनाते हैं. मतलब their team is just so good. When I was interning over there, I think the tech team was about 250-300 people, and a lot of them were just in DevOps. कि मतलब उनका काम ही यही था कि बस स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना. डेवलपमेंट जितने डेवलपर्स थे मतलब एक बहुत ही क्लोज रेशियो में उसके उनके डेवऑप्स की भी टीम थी. सो देयर फोकस वाज ऑलवेज ऑन स्केलेबिलिटी, एंड दैट्स द वन इनसाइट दैट आई गॉट फ्रॉम हॉटस्टार की मतलब या टेक बनाना है तो स्केलेबल ही बनाना. मतलब या आई एम नॉट सेइंग कि वाईसी की एक थोड़ी सी काउंटर एडवाइस होती है कि
So I think Paul Graham used to say this कि build things that don't scale, but that's okay. I mean, initially you can build things that don't scale, but at one point you have to think about scalability, right? So मतलब जब तुम अपना कोड बेस फंडामेंटली सेटअप करते हो, इफ़ यू हैव सम इंट्यूजन कि चलो अभी तो मैं जल्दी से क्विक हैकी वे में इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, बट इफ़ आई हैव टू ब्रेक इट अप इनटू अ स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज हाउ यू आई विल डू, एटलीस्ट एक इनिशियल इंट्यूजन होता है. सो या दैट्स वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हॉटस्टार. तो अकॉर्डिंग टू यू रजत यार, क्या फील्ड, क्या डोमेन इज इमर्जिंग दीज डेज? मतलब आपने डेवऑप्स की बात करी, स्केलेबल टेक की बात करी, तो इफ समवन्स चूजिंग कि यार वो किस डायरेक्शन में जाएं, तो व्हाट्स प्रेफरेबल अकॉर्डिंग टू यू? एंड यू आर टॉकिंग अबाउट टेक डोमेन, डेवऑप्स, क्लाउड, Web3, AI. तो मतलब आजकल तो यही चल रहा है. तो यार आई यूज्ड टू सी दिस ट्रेंड कि भाई जैसे मतलब मैंने तो सिर्फ YC एक्सेलरेटर देखा हुआ है. सो या देयर इज अ ट्रेंड इन देयर कोहॉर्ट्स एज वेल कि मतलब हर कोहॉर्ट में वो एक मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो फंड करते हैं वो कुछ हॉट टॉपिक होते हैं. 2021 के अराउंड शायद वो फिनटेक था. हम 2022 में गए थे, बट हमसे एक साल पहले फिनटेक था, हमारे टाइम पे Web3 था. फिर पिछले 2-3 बैचेस से AI चल रहा है. सो आई थिंक AI इज द न्यू हॉट टॉपिक राइट दीज डेज. आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड who was in an HFT. Really, I mean, it's the largest HFT in the country right now. He left his job last week. उसको भी AI में जाना है. तो मैंने पूछा भाई क्या कर रहा है? कह रहा अभी सोचा नहीं कि करना क्या, बट AI में जाना है. So I think that is one of the hot topics. ठीक है, इतने सारे लोग जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा निकल के आएगा ही. And yeah, I mean, people are making a lot of progress. So you are a YC backed startup? Yeah. Okay, तो process कैसा होता है to apply to YC and getting accepted? It's very simple. You have to just fill out an application. They read your application. If they like it, they will invite you to an interview. It's just a 10-minute short call, nothing more than that. 10-minute conversation करते हैं. If they like it, they accept you. Why do you feel you got accepted? Yeah, I mean, I asked this question to my group partner, and yeah, there was no clear-cut answer from him, and I also don't know why I got accepted. आज तक वो मेरे लिए बहुत बड़ा question mark है why I got accepted. But so I'll tell you this कि मैंने बोला ना 5th year में start कर दिया था, right? तो 5th year में जब शुरू किया था तो प्रोडक्ट हमने जनवरी 2022 में लॉन्च कर दिया था पहला MVP. और उसके बाद इनिशियली ट्रैक्शन थोड़ा अच्छा आने लगा, क्योंकि मैंने कहा ना कॉम्पिटिटर जो था वो 40 रुपये चार्ज करता था, हमने 2000 बैक में फ्री दे दिया. तो एसेंशली लोगों का हफ्ते का 80,000 का फ़ायदा हो रहा है पर यूज़र. तो बहुत सारे लोग आ गए, राइट? ट्रैक्शन अच्छा मिला. देन वी स्टार्टेड टॉकिंग टू VCs कि देखो ये हमने बनाया हुआ है, ट्रैक्शन अच्छी मिल रही है, व्हाट डू यू थिंक? एंड वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम मोर देन 50 VCs फ्रॉम द कंट्री, राइट? तो हम तो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड कि भाई मतलब बना तो दिया, बट मे बी इट्स नॉट अ गुड थिंग. मतलब हम जो कर रहे हैं क्या बकवास ही कर रहे होंगे, इसीलिए कोई भाव नहीं दे रहा. देन वी अप्लाइड टू YC एंड उसमें हुआ क्या कि आई थिंक हमने लेट एप्लीकेशन डाली समर 22. मतलब जब हमने डाला था तब एप्लीकेशन डेडलाइन खत्म हो गई थी, बट YC ऑल्सो एक्सेप्ट लेट एप्लीकेशन. सो हमने डाल दिया क्योंकि यहाँ से तो हर जगह रिजेक्शन मिलता था, एक और रिजेक्शन क्या ही फर्क पड़ता है. तो फिर हमें एक्चुअली इंटरव्यू का कॉल आया. एंड बाय दैट टाइम व्हेन आवर इंटरव्यू वाज स्केड्यूल्ड, बाय दैट टाइम दे हैड ऑलमोस्ट क्लोज द एंटायर बैच, बट वी स्टिल टुक आवर इंटरव्यू कॉल इन द लास्ट वीक ऑफ मे. तो अब मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि आई वॉज इन कॉलेज. दैट लास्ट वीक ऑफ मे वॉज माई लास्ट वीक इन कॉलेज, राइट? प्लेसमेंट में बैठा नहीं था मैं, हाथ में कोई जॉब नहीं थी. हर VC से रिजेक्शन मिला था, तो फंडिंग कहीं थी नहीं. सो आई वॉज वेरी डिजेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? And I remember it was May 27, 2022. I got call from Brad. We got call from Brad, who was our group partner. And that's the day we got accepted into YC, and it was a pretty ecstatic feeling. मतलब अब लगता है कि ठीक है, हो गया 2 साल हो गए उस बात को, but उस point of time पे तो बहुत ही ज़्यादा ecstatic feeling थी. And yeah, YC was really very good. I mean, very good experience. काफ़ी different था. थोड़ा ये ना फिलोसफिकल क्वेश्चन है. आपने भी बोला कि कॉलेज का लास्ट हफ्ता था मई में, और आप रिएक्शंस देख रहे हो 50+ VCs से, आपने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई भी नहीं करा है. आपका एक स्टार्टअप है जो यूजर्स तो हैं, बट अभी कुछ उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, पता नहीं इट्स गुड और नॉट वर्किंग.
तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि यार ये क्या कर दिया, क्या करूँ आगे? सेल्फ डाउट ही आता है यार, मतलब और क्या आएगा, तो सबके दिमाग में सेल्फ डाउट ही आता है, हाँ। प्रीटी नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग, राइट। हाँ, यही लगता है कि मतलब ठीक है, मे बी इट वॉज जस्ट अ साइड प्रोजेक्ट, मज़ा आया काम करके, बट शायद अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि कुछ हो नहीं रहा। तो फिर उससे बाहर कैसे निकले उस फेज से? कुछ नहीं, देखो उस टाइम पे बस द ओनली थिंग आई वॉज होल्डिंग ऑन टू वॉज कि पीपल आर लाइकिंग व्हाट आई एम बिल्डिंग, मतलब सो क्या था कि मतलब हमने इनिशियली प्रोडक्ट तो जनवरी में लॉन्च कर दिया, बट इतने ज़्यादा कस्टमर फीचर रिक्वेस्ट आते थे कि भाई मुझे ये भी दो, मुझे ये भी दो, मुझे वो भी दो। हम वी वर प्री रेवेन्यू, मतलब इवन आफ्टर गेटिंग इनटू वाईसी वी वर प्री रेवेन्यू, हम कुछ भी पैसा नहीं कलेक्ट करते थे। सो दिस वॉज वन थिंग आई वॉज होल्डिंग ऑन टू कि पीपल आर लाइकिंग व्हाट आई एम बिल्डिंग, तो मतलब भले ही VCs आर नॉट लाइकिंग इट, लेट्स गिव इट अ ट्राई, राइट। आई मीन लोग तो पसंद आ रहे हैं, कुछ नहीं तो छोटा मोटा शायद धंधा बन जाएगा, नहीं होगा तो थोड़े टाइम और ट्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे क्या डिसीजन कॉल लेना है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो यही दिमाग में थॉट था। इवन सो आई सेड नो वी आर प्री रेवेन्यू, सो जब इंटरव्यू हो गया हमारा 10 मिनट का कॉल, एंड आफ्टर दैट वी हैड कपल ऑफ एक्सचेंजेस विद YC itself, they had some more questions they wanted to ask, और वो 10 मिनट की कॉन्वर्जेशन में कवर नहीं हो पाया। तो एक क्वेश्चन ये था कि आर यू गाइज जनरेटिंग एनी मनी, एंड वी सेड नो वी आर प्री रेवेन्यू एंड दैट्स बाई चॉइस, कि हम कस्टमर से पैसे नहीं ले रहे हैं, बट हम अगर चाहे तो हम ले सकते हैं, एंड जस्ट टू शो इट एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि हम ले सकते हैं। व्हाट वी सो वी वर ओनली बैक टेस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और कुछ नहीं कर रहे थे। सो व्हाट वी पोस्टेड ऑन आवर ट्विटर पे हमारी 3-4 हज़ार की फॉलोइंग हो गई थी, तो वी पोस्टेड ऑन ट्विटर कि हे गाइस वी आर डूइंग लाइव एग्जीक्यूशन, हम लाइव ट्रेडिंग का प्रोडक्ट ला रहे हैं और अगले महीने लॉन्च कर देंगे। इफ़ यू वांट टू गेट अर्ली एक्सेस पे अस 100 रुपीज़ ऑन दिस पेटीएम नंबर, और वो मेरा पर्सनल पेटीएम नंबर था, पे अस 100 रुपीज़ ऑन दिस पर्सनल पेटीएम नंबर एंड यू नो विल गिव यू फ्री अर्ली एक्सेस। और इमीडिएटली विद इन 1 आवर ऐसे 40 लोगों ने पैसे दे दिए थे, एंड वी जस्ट पोस्टेड टू YC कि देखो हम मतलब हम पैसे जनरेट कर सकते हैं। सो या मतलब आई डोंट नो, ब्रैड जस्ट चकल्ड ऑन इट कि दैट्स गुड, बट हाँ दैट वाज आल्सो वन गुड थिंग कि हाँ मतलब हम आउट ऑफ चॉइस अभी पैसे नहीं ले रहे हैं, बट या पीपल आर लविंग व्हाट वी आर डूइंग। यार आपने ना 2 हैक्स मेरे को अभी शेयर किए बिना बताए। एक आपने बोला कि पीपल वर चार्जिंग मनी फॉर बैक टेस्टिंग, बट आपने वो फ्री में प्रोवाइड किया 2000 वो भी, तो उससे आपको एक एज मिली, यूजर्स आए। सेकंड आपने बोला कि अभी आपने अर्ली एक्सेस के लिए ट्विटर पे पोस्ट किया, उनसे पैसे लिए। अभी तो हमने उस टाइम प्रोडक्ट भी बिल्ड करना नहीं शुरू किया। हाँ, तो ये 2 हैक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज एक जगह पे आपने फ्री में एक सर्विस देके, के प्रोडक्ट देके अपने यूजर्स एक्वायर कर लिए, सेकंड जगह पे आपने उन यूजर्स से अर्ली एक्सेस फॉर नेक्स्ट प्रोडक्ट, बिकॉज आपकी सर्विस अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो उनको आपने वो ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है। उस पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने उनको एक नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए, नेक्स्ट प्रॉमिस के लिए आपने उनसे अर्ली एक्सेस के लिए पैसे ले लिए। तो ये आपके दिमाग में कैसे आई चीज़ कि लेट्स डू इट फॉर फ्री एंड अर्ली एक्सेस के लिए पैसे ले लेते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड हैक जो मेरे को अभी तक समझ में आया है। See, essentially what you said, right? It's all about gaining trust of the customer. So, अगर लोगों का trust gain करना है, और especially in a financial product that you are building, अगर लोगों का ट्रस्ट गेन करना है, यू हैव टू लेट देम यूज़ द प्रोडक्ट, राइट। तो अगर तुम इनिशियली पैसे लोगे तो लोग क्यों ही तुम्हारा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो द फर्स्ट हैक वाज कि भाई दे के तो देखो, लोगों का फीडबैक तो लो, लेट्स जस्ट स्टार्ट इम्प्रूविंग ऑन पीपल्स फीडबैक। आई मीन दैट्स द फर्स्ट थिंग कि प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं, पैसे तो कभी भी ले लेंगे, मतलब जब लेना होगा, या मतलब वो तो लोग डिसाइड करेंगे, इट्स अ डेमोक्रेसी कि भाई कितने पैसे देने और कब देने। तो बस प्रोडक्ट अभी बिल्ड करते हैं। तो पहला हैक तो वही था कि लेट्स जस्ट गिव इट आउट फॉर फ्री। और जो दूसरा था वो तो इसलिए था कि हाँ वी कैन जनरेट अ रेवेन्यू, तो दिखाने के लिए, या कि मतलब पीपल लव अस, दैट वाज वो सेकंड थॉट प्रोसेस, तो बस वही था। बट डिड दैट हेल्प यू रजत, मतलब जो फ्री में जो कस्टमर्स आपने एक्वायर किए थे, फ्री में सर्विसेज देके, बैक टेस्टिंग देके, डिड दैट हेल्प यू? या आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम द कस्टमर्स, क्योंकि देखो हम उस टाइम तक, मैंने कहा ना कि सिर्फ प्रॉप ट्रेडिंग की साइड में थे, खुद जो है स्ट्रैटेजीज कोड आउट कर देते हैं। रिटेल का बस आइडिया था कि यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, बट एग्जैक्टली कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हमें बिल्कुल नहीं पता था ना। तो एक बार जब हमने प्रोडक्ट बना के लॉन्च किया, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग टू अस, हमारे पास इतने सारे इनबाउंड लीड्स आने शुरू हो गए कि फिर हमें पता चला कि लोग यूज़ क्या करते हैं, लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। एंड या मतलब दैट हाँ मतलब वो भले ही हमने फ्री दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो,
मतलब इतना हमारा कोई कॉस्ट भी नहीं था उस प्रोडक्ट को रन करने में, सो वी कुड अफोर्ड इट फॉर फ्री। लेकिन कस्टमर इंसाइट जो मिली वो बहुत ज़्यादा इनवैल्यूएबल थी। उससे हमें पता चला कि आगे हमें और क्या बिल्ड करना है, एटलीस्ट फॉर द फोरसिएबल फ्यूचर हमारा प्रोडक्ट रोड मैप दिखना कैसे चाहिए, वो उससे हमें उसी से पता चला। वन मोर थिंग, वो हमने 40 लोगों से 100 रुपये तो लिए थे, बट जब हमने एक महीने में लॉन्च नहीं किया क्योंकि अभी हमने बनाना ही नहीं शुरू किया था। तो वी लॉन्च्ड इट टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर YC बैच। So I think YC batch started on 17th of June. We launched our live trading product on 1st of August. और हमने May end में ये पैसे चार्ज किए थे। So essentially दो महीने बाद हमने उसको लॉन्च किया था। तो उन 40 लोगों में से किसी ने भी नहीं कहा कि हमने 100 रुपये दिए थे और वो अनलिमिटेड एक्सेस कहा गया, मतलब nobody did it। क्योंकि हमने जब उसको लॉन्च किया था हमने उसे भी फ्री कर दिया था कि हाँ भाई ले लो फ्री। बट हमने उसे 15 दिन बाद ऐसे मोनेटाइज कर लिया क्योंकि हाँ मतलब उस टाइम पे रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करना। करेक्ट। देन वन कस्टमर सेड कि भाई मैंने 100 रुपये दिया था, हाँ भाई ले ले फ्री एक्सेस, प्रॉमिस्ड इट। नाइस। तो YC का एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ पे क्या सीखा, दूसरे स्टार्टअप से क्या बातें हुई? Yeah, pretty good, man. So the way YC cohort is divided, right? It's a 12-week program. So what they try to do is कि initial first 4 weeks, right? They just push you towards launching your product कि भाई मतलब whatever you have, it doesn't matter कितना भी टूटा फूटा हुआ, it's an MVP, it's a proof of concept. Just initial 4 weeks they just try to push you towards कि launch करो अपना product, ठीक है। मतलब जब तक लॉन्च नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा, साइलो में बिल्ड करते रहोगे तो यू विल नेवर गेट इनसाइट्स अबाउट व्हाट यू वांट टू बिल्ड, राइट। तो एक तो वो चीज़ बड़ी सही थी क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो सालों तक उसे प्रोडक्ट बिल्ड करते रहते, कभी लॉन्च नहीं करते। मतलब हाँ डर रहता है सबके दिमाग में कि भाई मैं बिल्ड कर रहा हूँ, कल को फेल हो गया तो मतलब मेरा तो पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। बट यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ आउट इन द मार्केट। तो इनिशियल 4 वीक्स वो करता है। फिर नेक्स्ट 4 वीक्स वो कहते हैं कि अब चलो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अब ट्रैक्शन लेके आओ, जस्ट ट्राई टू सी हाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर इनिशियल MVP, राइट। तो द नेक्स्ट 4 वीक्स ऑल अबाउट दैट कि लोगों से बात करो, ट्रैक्शन लेके आओ। इट्स अ B2B, तो स्पेशली B2B में तो YC बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बिकॉज व्हाट YC गिव्स यू इज एसेंशियली लाइक व्हाट IIT गिव्स यू। मतलब इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन IIT में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। ओनली थिंग दैट IIT गिव्स यू, यू नो, इट गिव्स यू अ टैग एंड इट गिव्स यू अ नेटवर्क, एंड सिमिलरली थिंग एग्जैक्टली व्हाट YC गिव्स यू, इट गिव्स यू अ टैग एंड इट गिव्स यू अ नेटवर्क। सो स्पेशली इफ यू बिल्डिंग समथिंग इन B2B, राइट, तो मतलब वो टैग तो मिल ही जाएगा और वो नेटवर्क भी मिल जाएगा। इट गिव्स यू एक्सेस टू 4000 कंपनीज, जाके उनको अपना प्रोडक्ट बेचो। B2C में वो टैग मिल जाएगा कि हाँ मतलब वो कस्टमर ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा अपने आप ही आ जाती है। तो नेक्स्ट 4 वीक्स उनके वही होते हैं कि भाई अपना ट्रैक्शन लेके आओ अपने प्रोडक्ट पे। एंड द लास्ट 4 वीक्स आर अबाउट फंड रेजिंग कि भाई सामने इन्वेस्टर के दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, उसके लिए तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है। सो दे have one-on-one calls with the company, and they try to prepare you for fundraising. Interesting. Correct. Awesome. Thank you so much, Rajat, for coming down to the studio, sharing your experience. I loved it. Yeah, same here, man. Thanks for having me over here, and it was a wonderful experience. If you are still watching, please comment down below HWPO, which means hard work pays off, and let me know you watched till the end. Awesome. See you in the next one.